Hello students, you all are most welcome in your YouTube channel Preparation with RJ. You know the vacancies of Master Cadre English, fresh vacancies plus backlog vacancies are out. So we restart our preparation with your YouTube channel Preparation with RJ. Our today topic is modern age writer James Joyce. This video will also help for your lecture English exam. Let's start. James Joyce. James Joyce birth 1882 and death 1941. Full name of James Joyce, James Augustine Aloysius Joyce. Nationality of James Joyce, Irish. Citizenship, British. Style of writing of James Joyce, broken narrative. Contemporary writer of James Joyce, Virginia Woolf. Term coined by James Joyce, epiphany. Epiphany is a literary term coined by James Joyce. It means a sudden realization of a fact in a public place. As an example, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਪੀਫੈਨੀ. ਦਿਸ ਟਰਮ coined by James Joyce. Novel written by James Joyce 3, play 1, and many more short stories. Writer influenced by Joyce. James Joyce ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਮੂਅਲ ਬੈਕਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ. ਟੈਕਨੀਕ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਜੇਮਸ ਜੁਆਇਸ. ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਾਈਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਜੇਮਸ ਜੁਆਇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਰਾਈਟਰ ਹੈ. ਰੀਜਨਲ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਲ ਨਾਵਲਸ ਸੈਟ ਇਨ. ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਜੇਮਸ ਜੁਆਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲ ਜੋ ਨਾਵਲ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਡਬਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. हाँ जी, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क जेम्स जॉयस का जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है वो है चैम्बर म्यूजिक, कलेक्शन ऑफ लव पोइम्स. दिस चैम्बर म्यूजिक इज द कलेक्शन ऑफ लव पोइम्स. फर्स्ट फुल लेंथ वर्क एडिटेड बाय एजरा पाउंड. हाँ जी, लेट्स मूव टू फर्स्ट नेक्स्ट वर्क ऑफ जेम्स जॉयस, शॉर्ट स्टोरी द डबलिनर्स, published in 1914, collection of 15 short stories. The literary device used by James Joyce in The Dubliner is chiasmus. हाँ जी, chiasmus, this is a literary term. It means concepts are repeated in reverse order in the same or a modified form. हाँ जी, जो लिटरेरी टर्म्स ने एक स्पैशल वीडियो मैं बनाऊँगी लिटरेरी टर्म्स के लिए, उसदे विच सारियां लिटरेरी टर्म्स ने जो तुहानूं वो एक्सप्लेन कीतियां जाणगियां. नैक्सट, डील्स विद आयरिश मिडल क्लास लाइफ इन द अर्ली 20th सेंचुरी. हाँ जी, जो द डबलिनर है ये डील करती है आयरिश मिडल क्लास लाइफ इन द अर्ली 20th सेंचुरी. डील्स विद मिजरेबल लाइफ ऑफ पीपल लिव इन स्लम्स ऑफ डबलिन. हाँ जी, डबलिन के जो स्लम्स एरिया के रहते हैं उन्होंने जो मिजरेबल लाइफ है उन्होंने बारे दसिया गया इस पोइम इस शॉर्ट स्टोरी के द डबलिनर. डिवीजन ट्री पार्टी मीनस इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मैच्योरिटी. जॉनर शॉर्ट स्टोरी, दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी. नेक्स्ट, a portrait of the artist as a young man. This is first novel by James Joyce. Most important question. Sometime the examiner, the paper setter raise the question that name the first novel written by James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man. It is a new type of novel that is called constellar roman. हाँ जी, constellar roman. It means novel in modernism, deals with writer's development.
हाँ जी, जो नॉवल राइटर की डिवेलपमेंट बारे गल कर रहे हैं उन्होंने कंस्टलर नॉवल कहा जाता है। रिटन इन अ मॉडर्निस्ट स्टाइल, दिस नॉवल इज रिटन इन अ मॉडर्निस्ट स्टाइल। टोटल चैप्टर इन दिस नॉवल 63 but completed 25 chapters in three form. This novel is in three form: lyrical, epic and dramatic, written in stream of consciousness technique। हाँ जी, बहुत बार क्वेश्चन रेज हो जाते हैं पेपर दे विच कि जो जेम्स जॉयस है उसका अ पोर्ट्रेट ऑफ अ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन किहड़ी टैक्नीक यूज़ की गई है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनैस टैक्नीक। deals with James Joyce conflict between two options। हाँ जी, ये दो ऑप्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਕਲਰਜੀਮੈਨ ਐਂਡ ਰਾਈਟਰ। ਜੋ ਇਸ ਨੋਵਲ ਦਾ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਟੀਫਨ ਡੈਡਲਸ। ਸਟੀਫਨਸ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਸਾइमन, ਚਰਚ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਡੋਲਨ, ਪੁਨਿਸ਼ ਸਟੀਫਨ ਜੋ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਪੁਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੀਫਨ ਡੈਡਲਸ ਨੂੰ ਪੁਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਫਾਦਰ ਡੋਲਨ। हाँ जी, पब्लिश्ड, हाँ जी, दिस नॉवल पब्लिश्ड इन 1916। हाँ जी, जो पब्लिशिंग ईयर ने जेम्स जॉयस के वर्क्स के नॉवल्स के शॉर्ट स्टोरी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। वैसे तो हर एक राइटर के इंपॉर्टेंट ने बट जेम्स जॉयस के जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन रेज किया जाता उसके वर्क्स के पब्लिशिंग ईयर के रिलेटेड ही होंगे ऑलमोस्ट। हाँ जी, दिस इज सैमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। हाँ जी, फर्स्ट लाइन ऑफ दिस नॉवल: वंस अपॉन अ टाइम and a very good time, Macau coming down along the road, and this Macau time was coming down along the road, let a little boy named Davy Tuco। हाँ जी, जो फर्स्ट लाइन है ऑलमोस्ट पेपर तुहानूं पता ही है अजकल जो कंपीटिशन का जो लैवल है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। सो सिंपल वे नाल जो एग्जामिनर है पेपर सैटर है वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा अजकल, पूछ सकता है कि किहड़ी फर्स्ट लाइन है, दो फर्स्ट वाली लाइनां दे सकते हैं डैश डैश करके, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो तुसी फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स ने वो जरूर गो थ्रू करियो। हाँ जी, लास्ट लाइन ऑफ दिस नॉवल: ओल्ड फादर ओल्ड आर्टिफिशियर स्टैंड मी नाउ एंड एवर इन अ गुड स्टेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लास्ट लाइन है इस नॉवल की। मूव टू द नेक्स्ट वर्क, यूलिसिस। हाँ जी, पब्लिश्ड इन 1922, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूलिसिस पब्लिश्ड इन 1922, जॉयस मास्टरपीस, दिस इज अ जॉयस मास्टरपीस जॉनर नॉवल। यूलिसिस इज बेस्ड ऑन होमर्स एपिक पोइम द ओडिसी। हाँ जी, जो होमर का जो एपिक पोइम है द ओडिसी पर बेस्ड है यूलिसिस। यूलिसिस इज द लैटिनिश नेम ओडिसियस। यूलिसिस का जो लैटिनिशियस नेम है वो है ओडिसियस, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन ओडिसी, दैट्स वाई इट्स लैटिनिश नेम इज ओडिसिस। डील्स विद यूलिसिस डील्स विद लाइफ ऑफ टू मिडल क्लास आयरिश मैन, लियोपोल्ड ब्लूम एंड स्टीफन डेडलस। हाँ जी, जिमें कि आप लास्ट फर्स्ट नॉवल है जो जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, उस दे विच जो प्रोटैगनिस्ट सी वो सी स्टीफन डेडलस। सेम नेम यूलिसिस दे विच भी जेम्स जॉयस द्वारा यूज़ किया गया है, स्टीफन डेडलस। स्टोरी ऑफ अ सिंगल डे 16 जुलाई 1904। हाँ जी, ये सिंगल डे की स्टोरी है 16 जुलाई 1904 की। अप्रॉक्सीमेटली 18 आवर्स की स्टोरी है। मॉली ब्लूम वाइफ ऑफ लियोपर्ड ब्लूम। हाँ जी, जो लियोपर्ड ब्लूम है उसकी वाइफ है मॉली ब्लूम। जो हीरो है इस नॉवल का लियोपर्ड ब्लूम वो रिप्रजेंट कर रहा है यूलिसिस नूं। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर दे विच अजकल ऐं पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि यूलिसिस नूं यूलिसिस नॉवल दे विच कौन रिप्रजेंट कर रहा है? लियोपर्ड ब्लूम कर रहा है, मॉली ब्लूम कर रहा है, स्टीफन डेडलस, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। राइट आंसर इज लियोपर्ड ब्लूम। राइटर है जो इस स्टोरी दे विच नॉवल दे विच स्टीफन डेडलस, जो रिप्रजेंट कर रहा है टेलीमैकस नूं जो कि ओडिसिस का सन है। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, मॉली ब्लूम रिप्रजेंट कर रही है पेनी लॉप नूं। काफ़ी क्वेश्चन इत्थों रेज हो सकते हैं।
डिवाइडेड इनटू 18 एपीसोड। हाँ जी 18 एपीसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਯੂਲਿਸਿਸ ਨੂੰ। ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ stately plum buck mulligan came from the stairhead bearing a bowl of leather on which a mirror and laser lay crossed। हाँ जी ये फर्स्ट लाइन है यूलिसिस दी। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, yes I said yes I will yes आ सकती है जी। हाँ जी इस दे विच जे एक ध्यान दो तुसी फर्स्ट लैटर भी yes है और लास्ट लैटर भी है जो उसका yes है, जो वर्ड है सॉरी फर्स्ट वर्ड भी yes और लास्ट वर्ड भी yes, yes I said yes I will yes। दिस नॉवल बैंड, हाँ जी ये नॉवल ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ऑब्ससीनिटी ਦੇ ਕਾਰਨ। ऑब्ससीनिटी ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਲਗਰਨੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। यूलिसिस आइडिया टेकन फ्रॉम, हाँ जी जेम्स जॉयस ਨੂੰ यूलिसिस ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਚਾਰल्स लैम ਦੀ बुक द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूलिसिस नॉवल है written by James Joyce in published in 1922, but Lord Alfred Tennyson also wrote Ulysses, but this Ulysses is a poem banned in US। हाँ जी Ulysses 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ बैन होया in US and ban lifted in 1933। बैन लिफ्टड बैन जो हटिया सी 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਿਆ ਸੀ। बैंड इन इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यूलिसिस बैंड ਹੋਇਆ ਸੀ 1929। जो ये डेट्स ने अप्रॉक्स ने अलग अलग रिसोर्स ਤੁਹਾਨੂੰ अलग अलग ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ अप्रॉक्सीमेटली ने। फोर्थ फिनिगन वेक, फिनिगन्स वेक पब्लिश्ड इन 1939, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल है जो जेम्स जॉयस ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो 3704 मास्टर कैडर और 3582 मास्टर कैडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1939, ਫਿਨਿਗਨ ਵੇਵ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1939, ਜਨਰਲ ਨੋਵਲ ਫਿਕਸ਼ਨ मैनिपियन सैटायर, डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स एंड 17 चैप्टर्स। हाँ जी ये याद रखना 4 बुक्स से 17 चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। और एक लॉजिकल गल है कि 17 चैप्टर ने तो 17 ईयर ही इसनों कंप्लीट करने ਦੇ ਵਿੱਚ जेम्स जॉयस ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज यूज्ड इन दिस नॉवल। हाँ जी जेम्स जॉयस ने अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट है यंग मैन ਦੇ ਵਿੱਚ, यूलिसिस ਦੇ ਵਿੱਚ और ਫਿਨਿਗਨਸ ਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है जो यूज़ की है। इट हैज़ बिन कॉल्ड, हाँ जी इसनों की कहा जाता अ वर्क ऑफ फिक्शन विच कंबाइन्स अ बॉडी ऑफ फेबल्स विथ वर्क ऑफ एनालिसिस एंड डीकंस्ट्रक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन आ सकती है कि किहड़े जो वर्क है जां किहदा जो वर्क है जां वर्क का नेम दसो जिसनों ये चीज़ कहा जाता है, ये लाइन कही जाती है अ वर्क ऑफ फिक्शन जो भी कुछ है। हाँ जी डैशेस लिख के तो याद रखना कि फिनिगन्स वेक बाय जेम्स जॉयस। 17 years took to write this novel as I earlier said। नेक्स्ट द कैट एंड द डेविल। हाँ जी जो फर्स्ट 4 वर्क ने ना मैं दसे ने यूलिसिस दे जेम्स जॉयस दे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ने। नैक्सट माइनर वर्क आ गए द कैट एंड द डेविल पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। हाँ जी पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड होया, पोस्ट्यूमसली मीन्स आफ्टर डेथ। जॉनर फिक्शन। फिन्स होटल। नेक्स्ट है द कैट्स ऑफ कॉफनहैगन शॉर्ट स्टोरी। हाँ जी इन्हों का जस्ट इन्ना नहीं करना इनफ है थोड़ी प्रैपरेशन लिए, ज़्यादा डिटेल से नहीं आऊगा। अरबी शॉर्ट स्टोरियाँ पब्लिश्ड इन 1914। कलैक्शन डबलिनर, हाँ जी याद रहेगा कि डबलिनर पब्लिश्ड हुई सी 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ और ये भी शॉर्ट स्टोरी है जो अरबी आ जो किस दे विच पब्लिश्ड हुई आ, किस दा पार्ट है डबलिनर का। एग्जाइल्स प्ले आ बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द डेड के उपर बेस्ड है। फाइनल शॉर्ट स्टोरी कलैक्शन है डबलिनर की। हाँ जी डबलिनर की तुहानूं दस्सिया सीगा कि 15 शॉर्ट स्टोरी ने उस दे विचों एक आपां हुणी करके हटियांगे अरबी एंड नैक्सट है एग्जाइल, ये फाइनल शॉर्ट स्टोरी आ। प्ले रिजैक्टड बाय, हाँ जी इसनूं रिजैक्ट किया गया सी W.E. यीट्स ने। क्यों किया सी? इसका कोई रीजन होएगा क्योंकि अलग अलग
ਬਿਹੇਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ W.E. Yeats ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦਾ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ, ਕਿ ਐਬੇ ਥੀਏਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1918। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਚੈਂਬਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਸਟ ਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਵਰਕ ਜੇਮਸ ਜॉयस, collection of love poems published in 1907, 36 poem in this chamber music collection of poem work, first full length work. I think you all understand this writer very clearly. If you have any kind of suggestion, idea, then please share with me, comment in the comment box. Don't forget to subscribe my channel. For more notification and video, press on the bell icon. Thank you.